آغاز کریں گے وزیر اعظم کے دھواں خطاب سے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 24,000 ارب قرض لیا اور کوئی ایک نئی اینٹ تک نہیں لگائی۔ شہباز شریف کا بشام میں خطاب، سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے گئے، کام کچھ بھی نہیں کیا، اور پشاور بی آر ٹی چلتی رہی اور جلتی رہی، تقریروں میں غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے رہے۔ 4 سال میں انتہائی کرپشن اور نالائقی دیکھنے میں آئی۔ تیل گیس وقت پر نہ منگوانے پر معیشت بیٹھ گئی۔ اب محنت اور خون پسینہ ایک کرنے سے ہمارا بھکاری پن ختم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں آٹا پنجاب کی قیمت پر دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ امریکہ کو پاکستان میں آزاد حکومت کی عادت نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اوورسیز پاکستانیوں سے ورچوئل خطاب، کہتے ہیں کبھی بھی امریکہ یا یورپ کا مخالف نہیں رہا۔ امریکہ کو عادت ہے جو بات پاکستان سے منوانی ہوتی ہے اس پر یہاں سیلیوٹ مارا جاتا ہے۔ امریکہ کا کیا کام ہمارے ان لوگوں سے ملے جو ہم سے خوش نہیں تھے۔ میڈیا پر طنز کرتے ہوئے کہا مہنگائی بڑھ رہی ہے، اب کیوں نہیں کرتے تنقید۔ میں کبھی بھی اینٹی امریکن نہیں رہا۔ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے پاکستان کی، امریکنز کی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی پاکستان سے بات منوانی ہو حکم ہوتا تھا اور یہاں سلوٹ مارا جاتا تھا، ہر ان کی خواہش پوری کی جاتی تھی۔ امبیسڈر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی۔ اب تو کلیئر ہو گیا سب کچھ۔ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا۔ شہباز شریف کے اوپر 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں، انکوائری سٹیج پہ کیسز ہیں، اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں۔ امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے، ان کا اپنا وزیر نون لیگ کا کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوں۔ شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دی۔ کرمنلز کی حکومت دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی یہ حکومت کے لوگ چلیں، ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ، غدار اور چور۔ میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے، اب کدھر گئی مہنگائی؟ اب ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے جی کہ بتائیں جی کیا حالات ہے؟ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی۔ یہ تو تھا عمران خان کا خطاب، لیکن حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ عمران خان نے خودکش بمبار کی جیکٹ پہن رکھی ہے۔ اگر سپریم کورٹ رات کو نہ کھلتی تو یہ ملک بنانا ریپبلک بن جاتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے فیصل آباد میں سابق وزیر اعظم پر وار، کہا یہ ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ آٹا، چینی، ادویات چوری کا حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے، کسی کو سسٹم خراب نہیں کرنے دیں گے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے والے ہیں۔ یہ جو تماشا 1 مہینے لگا رہا ہے، اگر سپریم کورٹ اس دن نہ کھلتا تو یہ ملک آج بنانا ریپبلک ہوتا۔ یہ شخص جس کا نام عمران نیازی ہے، یہ خودکش جیکٹ پہنے ہوئے ہے اور یہ خودکش بمبار بن کر سسٹم پر گرنا چاہتا ہے۔ انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن اگر چینی میں، آٹے میں، دوائیوں کے اسکینڈل میں پاکستانی عوام کی اور بالخصوص پنجاب کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کا حساب تو لینا ہمارا ذمہ داری ہے۔ سسٹم کو خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ بہت ہنگامی بنیادوں پر وہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے، چاہے وہ گڈ گورننس ہے، چاہے وہ اشیاء خورد و نوش ہیں، اور اس پہ ہم پہرا دیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے وضاحت کی ہے کہ ایف آئی اے نے حکومت کی اجازت کے بغیر پیکا ایکٹ 2016 سے متعلق سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی۔ یہ پٹیشن فوری طور پر واپس لی جا رہی ہے۔ ٹویٹ میں مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعظم اور مجھے کچھ دیر پہلے معلوم ہوا کہ ایف آئی اے نے ایکٹ کے سیکشن 20 کو بحال کرانے کی پٹیشن دائر کی ہے۔ یہ پٹیشن فوری طور پر واپس لی جا رہی ہے۔ یہ حکومت کی بیان کردہ پالیسی اور آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانے کے اصول کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم نے اس پٹیشن کے دائر ہونے کا سخت نوٹس لیا۔ اور یہ خبر ان کے لیے جو کہ 4 شادیاں کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے منحرف رکن کی تیسری بیوی بھی منحرف، خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ بات کر رہے ہیں عامر لیاقت کی، جن کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ عامر لیاقت کو نفسیاتی اور ظالم ترین شخص قرار دے دیا۔ کہتی ہیں 4 ماہ اذیت میں گزارے۔ عامر لیاقت نے
नशा किया, मुझे मारा पीटा, छोटे से कमरे में कैद करके रखता था, संगीन नताइज की धमकियां भी दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अदालत ने आमिर लियाकत को 7 जून के लिए नोटिस जारी किया। दानिया की दरख्वास्त के बाद आमिर लियाकत ने भी जवाबी इल्ज़ामात ट्वीट कर दिए। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन की तीसरी बीवी भी मुनहरिफ खुला का दावा दायर करते दानिया शाह ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। आमिर लियाकत को नफ्सियाती और जालिम तरीन शख्स करार दिया। कहती हैं 4 माह से अजियत में गुजारे हैं। आमिर लियाकत ने नशे में मुझे मारा पीटा, छोटे से कमरे में कैद रखा और संगीन नताइज की धमकियां दी। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से भी अपील की है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 1, 2, 3 शादियां नाकाम। आमिर लियाकत की तीसरी शादी भी ना चल सकी। दानिया शाह ने संगीन इल्जामात के साथ खुला का दावा दायर कर दिया। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप, और तुम भी चुप। आमिर लियाकत के भी जवाबी इल्जामात। दानिया शाह ने बहावलपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तनसीखे निकाह का केस दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत अय्याश आदमी है, नशे में तशद्दुद करता रहा। अदालत तनसीखे निकाह की डिग्री जारी करे। हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए, घर और जेवरात अदा करने का हुक्म दिया जाए। अदालत 1 लाख रुपए खर्चा नान नफका भी मुकर्रर करे। दानिया शाह के इल्जामात पर आमिर लियाकत का जवाबी ट्वीट। कहते हैं नशा नहीं करता, दानिया ने सैयद होने का झूठ बोला। वो 4 माह में ज्यादा वक्त तो बहावलपुर में ही रही। तमाम इल्जामात झूठे हैं। दानिया शाह की वालिदा सलमा बीबी के भी आमिर लियाकत पर जुल्म सितम के इल्जामात। कहती हैं कि आमिर लियाकत का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। मेरी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था और कैद करके रखता था। वो नशे करता था और गंदी गंदी बातें करता था। नौकरों के सामने इज्जत भी नहीं करता था। 2-3 बार मारा भी है। बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे हैं। लड़की को इज्जत की ज़रूरत होती है। मैंने सिर्फ उसे इज्जत मांगी है। मुझे मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरे पास सब प्रूफ हैं, वक्त पे मैं दिखाऊँगी। अभी उसने इंस्टा पे इतनी गंदी बात की है। फिर मैं गलत हो रही थी तो मुझे याद ही क्यों की थी उसने। आमिर लियाकत के घिनौने इल्जामात का जवाब देंगे दानिया शाह के वकील मोहम्मद सरवर चौधरी का कहना है मजीद इंकशाफात भी डॉक्टर आमिर लियाकत के मुतालिक अगली पेशी पर कोर्ट में पेश किए जाएंगे। मेरी मौकला और उसके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनकी वकील की जानिब से ये कहा गया है, और मजीद सबूत सामने भी लाएंगे अगली पेशी में। बड़ी प्रूफ है जिसके दावा डिग्री होगा, क्योंकि उसने हक़ुल महर में जो लिख के दिया अदा नहीं किया, एविडेंस उसके पास मौजूद नहीं है। दूसरा उसने कहा कि गाड़ी और दूसरी घर वो भी उसको नहीं लेके दिया, और एक छोटे कमरे से ऊपर बना के रखा हुआ जो मियाँ बीवी दोनों रहते थे, और 5-5 दिन उसके कमरे में बैठाते थे। ये उसी के अल्फाज हैं। आखिरकार मैंने पूछा कि आपका बद सिन कहाँ से? कहती पहले तो टार्चर हुआ था, फिर मुझे उसने जो थ्रेट कॉल दी, मैं रेंजर के पुलिस बुला लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो फिर मैंने कानूनी जो रास्ता था वो अपनाया। उसका फैमिली कोर्ट में दावा दायर किया, दावा तनसीख ने कहा हक़ुल महर और नानुफ़ का एट्सट्रा, वो तो पेंडिंग है, जो 7/6/2022 के लिए मुकर्रर है रिस्पॉन्डेंट को तलबी के लिए। अखबार इश्तिहार हो चुका है उसमें। अब आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, कमर ज़मान कायरा, अली हैदर गिलानी और हसन मुर्तज़ा इस मुलाकात में शरीक थे। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर का ओहदा ना लेने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 2 से ज़ायद मुआवरीन खुसूसी, कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के ओहदे और 3 वजारतें मांग ली। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलजुल कर चलने पर इत्तफाक भी किया। वजीर आला हमजा शहबाज ने भरपूर ताउन करने पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 1 माह से सिसिलियन माफिया ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। अवाम के साथ मिलकर आखिरी दम तक माफियाज का मुकाबला करूंगा। अनोखा लाडला वज़ीर आला के होते हुए पंजाब पर काबिज हो गया। अनोखे लाडले ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता 1 महीने से जारी जो एक सिसिलियन माफिया के ख़िलाफ़ जो जबरदस्त वो कर रहे हैं,
आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर उसके ख़िलाफ़ अगर मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आइनी और कानूनी जो इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें रहते हुए मैंने अभी तक कर रहा हूँ। जिस दिन जब तक मैं गवर्नर हूँ, जिस दिन मैं गवर्नर नहीं रहूँगा उस दिन शायद मेरे बहुत सारे जो मुझे इस वक्त अभी लिमिटेशंस हैं वो ना रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं अवाम के साथ आखिरी दम तक इस सिसिलियन माफिया का मुकाबला करता रहूँगा। और अब कुछ बात वजीर दाखिला के दबंग बयान की। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च पुरअमन होने की यकीन दहानी ना कराई तो घर से नहीं निकलने देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया। लाहौर में एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा ये लोग एनआरकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने 3.5 साल सिर्फ झूठे मुकदमात ही तो बनाए, मैंने कत्ल कराए तो मनशियात का झूठा केस बनाने की जरूरत क्या थी। इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम के लिए फराहगोगी रखी हुई थी। इल्जामात पर इंक्वायरी हो रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे तो जिम्मेदार हम तुम 3 स्टूजेस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ। और कल वहाँ पे ये कह रहे थे राना सनाउल्लाह ने इतने कत्ल किए हैं। अगर मैंने इतने कत्ल किए थे तो फिर तुम्हें मेरे खिलाफ ये हीरोइन का झूठा मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी। अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। अगर कानून का ये तकाजा हुआ थ्रू रेड वारंट जो है वो लाया जाना जरूरी है तो बिल्कुल लाया जाएगा। और नहले पर दहला साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग अपनी औकात पर आ गई है। शैतानी चमगादड़ों के चेहरे देखें, ये कहते हैं घरों से निकाल कर मारेंगे। झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं, जितनी गिरफ्तारी करनी है कर लें। नून लीग अपनी औकात पर आ गई है। कल मरियम नवाज ने जनरल फैज का बार बार नाम लिया। उन्होंने लंदन में बैठकर 14 बार फौज के खिलाफ बात की। मुल्क को बचाने के लिए फौज की अजमत नेकनामी में इजाफे के लिए इलेक्शन चाहिए। शेख रशीद ने कहा कि 20 मई के बाद इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देंगे। नून लीग अपनी औकात पे आ गई है। जो उसका असली चेहरा है वो बेनकाब हो गया। इनके शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, जो तशद्दुद करना है करें। हुजूर ये मुल्क तशवीशनाक हालात में जाने जा रहा है। हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। फौज की अजमत, फौज की नेकनामी और फौज की इज्जत में इजाफे के लिए चाहिए। इमरान खान 20 तारीख से पहले कॉल देगा। किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे। कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। यही हम चाहते हैं। 14 मरतबा इन्होंने लंदन से बैठ के जनरल बाजवा के बारे में और पाक फौज के बारे में बात की है। हमें अपनी अजीम फौज पे फख्र है और ये वही अजीम फौज है जो पाकिस्तान की सालमियत की ज़ामिन है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है वोट को इज्जत दो ने ही इमरान साहब को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंका। इन्होंने ट्वीट किया कि कोई शर्म कोई हया, आंखें खोलें। फतेह जंग में अवाम का समंदर आपके मुंह पर जोरदार तमाचा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मीमन का कहना है इमरान खान अपने करप्शन स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए सियासी इंतशार पैदा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इंतशार फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देगी। MKM ने गवर्नर सिंध के लिए वफाकी हुकूमत को नाम दिए हैं। शर्जील मीमन ने मजीद कहा कराची को तोहफा देने जा रहे हैं, ऑरेंज लाइन पर दिन रात काम करेंगे। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने इमरान खान को मुल्क के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगर अदलिया, अफवाज और दीगर इदारों ने अपना आईनी किरदार अदा किया तो उसे सराहना चाहिए। इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही। तो खान साहब इस वक्त जो है वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं। कहते हैं कि अगर मैं नहीं हुकूमत में तो वो कोई और भी हुकूमत में ना हो। कल खान साहब ने फरमाया कि जितने भी मुनरिफ अराकीन हैं कहीं पे भी नजर आए तो उनको इबरतनाक बनाओ। आपने पंजाब में PMLN के MPA से मुलाकातें की थी, जिसकी तस्वीर अखबारों में छपी थी। आपने बंदी गाला में PMLN के MPA से मुलाकातें की थी।
हर काम वो पहले करते खुद हैं। इमरान खान को हटाते वक्त इस मुल्क के आइन को एग्जैक्टली मिनिमम फॉलो किया गया है। वो इस मुल्क के इदारों को टारगेट बना रहा है, इस मुल्क के आइन को टारगेट बना रहा है। ये यहाँ सिविल वार करवाना चाहता है, यहाँ लोगों को लड़ाना चाहता है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। सिंध और पंजाब में पानी का बहरान, ज़रूरी पानी न मिलने के बायस फसलें मुतासर होने लगी हैं। ठट्ठा, नौशेरा फिरोज, मुल्तान और दीगर इलाकों में काश्तकारों के मुजाहरे। टंडवाला यार में काश्तकारों ने खुश्क घास मुंह में रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुतासरीन कहते हैं कि फसलें पहले ही खुश्क हो रही हैं, अब पीने को भी पानी मुयस्सर नहीं। पानी दो, पानी दो, पानी दो। सिंध और पंजाब में हर जगह पानी की दुहाई। हमें अपना हक दो, पानी दो, हमें अपना हक दो, पानी दो। सिंध के बेशतर इलाकों में ज़रूरी पानी की किल्लत है। नौशेरा फिरोज में शहरियों और किसानों ने रोहड़ी कैनाल पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत के बायस खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। हुक्केरानी सब डिवीजन को पानी दो, हुक्केरानी सब डिवीजन को पानी दो। टंडवाला यार में पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ आबादगारों ने अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने खुश्क घास मुंह में रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि अब तो पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। हजारों एकड़ काश्त होती थी कपास की, जो इस साल 1 एकड़ भी नहीं हो सकी है, तो आगे चलकर कपास का इंतहाई बहरान होगा। ठट्ठा समेत साहिली इलाकों केटी बंदर, घोड़ाबारी, मीरपुर साकरों में भी पानी का बहरान है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। उधर हैदराबाद में कोटरी बैराज से पानी के इखराज में कमी के बायस शहरी पीने के पानी और किसान ज़रूरी पानी से महरूम हैं। मुल्तान में भी काश्तकारों ने ज़रूरी पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि बंद बोसन नहर से मुलहका नालों में पानी फराहम नहीं किया जा रहा। पानी की किल्लत से आम के बागात मुतासिर होने का खदशा है। महंगाई का नया तूफान आ गया, जिससे अवाम बेहाल हैं। पंजाब में आटा 10 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। 20 किलोग्राम आटे का थैला 210 रुपये महंगा और 1100 रुपये से बढ़ाकर 1310 रुपये कर दिया गया है। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं कि मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत बढ़ानी पड़ी। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त एक हफ्ते में 165 रुपये और एक रोज़ में 52 रुपये महंगा हो गया। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दाल माश और दाल मूंग 10 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई। बेसन की कीमत फ़ी किलो 20 रुपये बढ़ा दी गई है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल 20 रुपये तक फ़ी लीटर। यूटिलिटी स्टोर्स पर 950 ग्राम चाय की पत्ती 68 रुपये से महंगी कर दी गई और कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और मुल्क में पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, जिस पर अपोजिशन जमातों की तरफ से मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में भी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है साकिब सईद ने। इलेक्शन कमीशन की ईवीएम और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से तैयारियां अमल दरामद हो पाएगा या नहीं, हतमी तौर पर तय नहीं हो सका। पिछली हुकूमत ने कानून पास किया, लेकिन मसला जूं का तूं है। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार भी एक हुक्मनामे में कह चुके हैं, किसी ज़िमनी इंतखाब में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए तारिकीन वतन पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। ई वोटिंग कैसे मुमकिन है, नादरा सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग भी दे चुका है। सौ से जायद ममालिक अपने बैरून मुल्क शहरियों को वोट का हक देते हैं, लेकिन कुछ कवानीन और शराइत भी हैं। बरतानिया के बैरून मुल्क रहने वाले शहरी वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो बैरून मुल्क रहने वाले शहरी के तौर पर रजिस्टर्ड हों। ऐसा वो 15 साल बाहर रहने तक कर सकते हैं। अमेरिका की कुछ रियासतों के अलावा ज्यादातर रियासतों ने ओवरसीज सिटीजन्स को वोट का हक दिया हुआ है। भारत के बैरून मुल्क शहरी भी वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोहरी शहरियत न हो। फ्रांस वो मुल्क है जिसने बैरून मुल्क शहरियों को वोट का हक देने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। कनाडा में कुछ शराइत थी, लेकिन अब खत्म कर दी गई हैं। इटली का कोई शहरी अगर बाहर से आकर वोट कास्ट करता है तो हुकूमत उसके सफर के 75% अखराजात बर्दाश्त करती है।
हुकूमत चली गई लेकिन वाइस चेयरमैन वासा जाने को तैयार नहीं है। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद को दी जाने वाली लग्जरी सहूलियात पर वासा ने खामोशी तोड़ दी। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे अदनान अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान अजीज, अब बताइएगा इन लाडले बच्चे को कौन भेजेगा? देखिए, लाडले बच्चे को तो फिलहाल भेजने के लिए दूसरा मसला भेजा गया है जो डेवलपमेंट की जानिब से, क्योंकि वासा ने वाइस चेयरमैन वासा से 2 गाड़ियां, फ्यूल कार्ड और लाख बुक्स की बकायदा दोबारा मसला लिखा है। रास्ते में वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद को साबिक क्लियर कर दिया गया है। शेख इम्तियाज महमूद से डबल कैबन गाड़ी जो वो भी वापस मांगी गई। इसके अलावा जो सुजुकी कल्टर से जो अलॉट की गई थी वो भी वापस मांग ली गई है। वाइस चेयरमैन वासा से 2 फ्यूल कार्ड और चिट बुक भी वापस मांग ली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदनान। और अब आपको मिलवाते हैं ऐसे पाकिस्तानी से जो कि कोयटा के रिहायशी हैं। उनका नाम है मोहम्मद इरफान, जो कि समात और कुव्वत गोयाई से महरूम है, लेकिन दूसरों के बच्चों को झूला झुलाकर अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी का सामान करता है। हमें तुम पर फ़ख्र है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। कोयटा का मोहम्मद इरफान समाते गोयाई से महरूम, वो ईद के दिनों में बच्चों को झूला झुलाकर पूरे साल की कमाई करने की कोशिश करता है। मोहम्मद इरफान इशारों में बच्चों को पैसे और चक्कर पूरा होने का इशारा करते हैं। ये लोग इशारों से बात करते हैं और मैं ईद के पहले दिन से यहाँ पे मतलब जंपिंग खाती हूँ और ये हमें इशारों से ही वो समझाते हैं। मोहम्मद इरफान और उमर एक साथ झूला लगाते हैं और अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ये बोले हमारा 3-4 भाई है, ये उधर भी काम कर रहे हैं, शबा स्टोर में भी है और इससे हम घर चलाता है, इससे कमाता है, फिर घर चलाता है, हमारा ये मजदूरी है। मोहम्मद इरफान की तरह हजारों लोग अगरचे ईद अपनों के साथ नहीं मना सकते, लेकिन वो मेहनत करके खानदान की मुश्किलात को कम करते हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज अली खान ने एक और बुलंद पहाड़ी चोटी को सर कर लिया है। सरबाज खान ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कुनचनजुंगा का मिशन भी मुकम्मल कर लिया है। वो 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 10 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन चुके हैं। हुंसा से ताल्लुक रखने वाले सरबाज माउंट एवरेस्ट, K2, नागा पर्वत भी सर कर चुके हैं।